Hi, good evening, Sat Shri Akal, Ram Ram. Welcome to our 100% IELTS Club and its revision batch. Anushka, Rishika, Prachi, Preeti, Radha, Chanchal, Ashutosh, Saloni, Tejas, Dhruv, Rohan, Sujan, Karan, Sparsh. All right. Namaskar, 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 Sparsh. So, before we begin, I'll make the agenda very clear that this session is about so here we just be revising certain concepts, okay? Revising certain concepts of structural grammar. हाँ जी. So structural grammar में जितने topics में divide किया हमने structural grammar को, which is usually asked in CAT and few more other examination, उन concepts का सिर्फ revision होगा. Questions or previous year questions or more development, it is not the session about. The session is about just the concept revision of structural grammar. As obviously in the revision batch of YT, I'll start giving you grammar questions as well. So before I start giving you grammar questions and everything, I thought of picking up 2 sessions in which I would make you revise all the concepts of grammar so that it will come on your tips. Okay, so you need to decide that investing 1 hour on this from your side would be required or not, that what kind of a grip you had on your grammar portion. Okay, chale. So I need to introduce myself as the session also would be recorded and few more students can watch it later. This is my introduction, guys. And yes, the only relevant detail I usually talk about, that is I'm going to teach you VRC. Hanji. For CAT, IP, MAT, and few more examination. I've been doing that for more than a decade now. Chaliye. So Ayush, Ekansh, Atharv, Ashish, Shivani, Mahi, Vedanshi, Manu. Hi Mahi, good evening to you too. चलिए सबको फिर से एक बार सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम. Before we continue our session, let's feel thankful to Unacademy that all these special classes, these free classes on YT, on special class on Unacademy also on this platform, it's just because of Unacademy. So, but still you would like to go ahead with your structured program, you can always pick up Plus or Iconic. The features and all you're already aware and you can see as well. My suggestion as a mentor would be that you can always go for Iconic programs. When you do that, you can always go for long term. That's a suggestion as a mentor, because 1 or 2 months preparation or subscription would not be cost effective, and it's going to be not effective plus not cost effective, both. So and when you do that, you can always use my code. My code will give you 10% additional benefit. Okay. My code is GSMBA. That's what my students who like me, they call me GS. Not obviously GSMBA. That's the code. Okay. Jeete raho putra ji, jeete raho Himanshu, Akansha, Ayushi, Suchita. So these are the new batches. We just begin, or so you can accordingly pick it up as per your choice, basically. Time, convenience, suitability, your bond with the educator accordingly. CAT Iconic, a lot of students ask. CAT Iconic is one-on-one mentorship program which talks about customized planning and convenience and concepts and doubt clearance and everything. Now, so what is structural grammar? Structural grammar क्या होगा वो एक बार को फिर भी अभी हम बात कर लेंगे. But before that, let me remind you that today's session, okay, this 1 hour, going to be an investment on revising, okay, on revising a few concepts which we have already discussed. Okay, so if you think that you already have clarity on certain topics which we usually talk about, then so you can choose. We are not solving questions today. It's going to be a very basic revision session for structural grammar points. ठीक है? Structural बार-बार मैं बोल रहा हूँ आपको. Academic grammar एक होती है, जैसे आपने active passive सीखना है, या आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करनी है. सो ये जो है ना, ये सारा एकेडमिक ग्रामर में आता है. लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल ग्रामर की बात करते हैं,
So this is more of while corresponding in English, be it written, be it oral, what's more important? That is what. चलिए एक just one moment. Now these are the topics I always suggest students to pick up for whenever they prepare for the aptitude test. These are the topics they work on. Students must pick up these topics when they prepare for any aptitude test, including CAT, IPMAT, or a few more examination. हाँ जी. So quickly give me thumbs up if you all are ready to discuss one or two topics today. One or two, in fact three. I think we're going to be picking up three topics because दो सेशन में पूरा रिवीजन कर लेंगे हम. ठीक है. वैष्णवी, अनुष्का, हिमांशु, हो गई अपनी बात हुई अभी? मैंने थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव, ढेर सारा प्यार भेजा एकदम. ठीक है. ओके, मुझे तो लग रहा था कि सबने पढ़ा हुआ है, तो देखें कितने लोग आते हैं, पर आप तो काफी लोग हैं, काफी स्टूडेंट्स हैं, पूरी महफिल है, जश्न की तैयारी है, तो ठीक है, उठाते हैं. सो ये अगले 2 सेशंस में आई विल बी कवरिंग प्रोनाउंस, पैरेललिज्म, pronoun noun pronoun agreement, subject verb agreement, modifiers, tense and idiomatic expressions. ठीक है. सर कैट फॉर्म फिलिंग का सेशन रखिएगा? हाँ बिल्कुल रखेंगे. कैट फॉर्म फिलिंग का सेशन क्यों नहीं रखेंगे? अगर और कोई नहीं रखेगा तो हम रख लेंगे. ठीक है. ठीक है वैष्णवी, डन. जपनीत यू जॉइंड. ओके. सो ये टॉपिक्स दो हम आज और कल में कवर करेंगे. आज स्टार्ट करते हैं. आज का एजेंडा रहेगा प्रोनाउन, पैरेललिज्म, रिडंडेंसी एंड मॉडिफायर्स. इसका क्विक रिवीजन. ओके, क्विक रिवीजन. ठीक है. क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती ऐसा, अंगूठे ऊंचे करती, पब्लिक नहीं करती? As a teacher, sometimes you underestimate your students, sometimes you overestimate your students. पर मैं कहता हूं कि ओवर एस्टिमेट से ज्यादा ठीक रहता है कि अगर ऐसा भी हो ना कि कोई चीज रिपीटेशन हो जाए, दोबारा पढ़ लें अपन, उसमें कोई इतना इशू नहीं है. मुझे कई बार लगता है कि नहीं अभी तो आता ही है, ये तो करवा ही दिया है, सो इट्स ओके. रिवीजन इज ऑलवेज बेटर, है ना. जितना ग्रामर का सबसे अच्छा, सी ग्रामर के क्वेश्चंस कब क्रैक होंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके ग्रामर के क्वेश्चन गलत होते हैं, उन बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो पढ़ते हैं. जो नहीं पढ़ते उनकी तो कहानी छोड़ दो. देखो वो तो लीग में नहीं है ना, सिंपल है, वो तो लॉजिकल है कि वो तो लीग में ही नहीं है. जो पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के ग्रामर में क्वेश्चंस गलत ही होते हैं कि जब वो वाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं करता. आता जरूर है, फिर वो ऐसे ओहो पता था यार, ये तो मुझे आता था, लेकिन होता है ऐसा. होता है कि नहीं होता? मॉक्स वगैरह में होता होगा ना ऐसा कि कॉन्सेप्ट तो पता था, सब कुछ पता था, लेकिन क्लिक नहीं हुआ उस टाइम पे. हाँ. सो एक्चुअली इसका तरीका यही है कि उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार किया जाए. और मेरे प्लस बैचेस में भी और इन सब में मैं एक बात बोलता हूँ सबको कि गाइस देखो, स्टूडेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, चाहे पैरा बेस्ड क्वेश्चंस हो, ग्रामर क्वेश्चंस हो, वोकैब क्वेश्चंस हो, एक बार एक क्वेश्चन नहीं करना है. कम से कम whatever questions question you practiced, you have to solve it more than once, at least 2 to 3 times. Okay. Mrinal, you saw the video on YouTube. एक second. You saw the video on YouTube पे, Unacademy पे. बहुत हेल्प किया मुझे क्वेश्चन बनाने. Thanks to you Mrinal, you kind beautiful words. चले प्रोनाउंस का लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन एंड देन उसके थोड़े से कुछ सेंटेंसेस दूं मैं आपको. क्या बोलती पब्लिक? थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें. ठीक है. सो जब हम क्विक रिवीजन की बात करते हैं प्रोनाउंस की, सो प्रोनाउंस में यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो प्रोनाउन अग्रीमेंट के आते हैं. ठीक है. या फिर नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट के आते हैं. और कुछ एक दो प्रोनाउंस होते हैं जो कि हमें क्लियर होने चाहिए. जैसे कि एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है. नाउ डू वी ऑल नो व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन बाय द वे? अब सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या हमें पर्सनल प्रोनाउन नाम की चीज पता होनी चाहिए?
पर्सनल प्रोनाउन नाम की चीज पता होने से क्या मतलब है? नाम तो कुछ भी रख दो, नाम तो चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी रख लो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। यू कॉल इट पर्सनल प्रोनाउन, यू कॉल इट समथिंग एल्स, इट डजंट मैटर एट ऑल, है ना? What matters is, so basically in English there are three types of persons. Okay, so keep listening to it. You might find certain things very basic, but उनमें से निकल के I would just be taking you always towards कि एप्टी में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, एप्टी में क्या बात हो सकती है, ठीक है? So जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, उसको भूल जाओ भले ही। एक चीज जो आपको ऑलरेडी आती है, that there are three persons in English language. One is the speaker, that's person one. टू पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है? लिसनर नहीं होता सेकंड पर्सन, द वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड, द वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड। समझ में आता है? स्पीकर और स्पीकर, द वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड होगी? ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए रिक्वायर्ड होगी क्योंकि इनका जो ऑर्डर है, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा हो, यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग लाइक, आई एंड माय फ्रेंड्स, आई एंड माय फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर पार्टी और समथिंग। प्रियांशी सेज व्हाई नॉट लिसनर? प्रियांशी, अगर हम दोनों बात करेंगे तो मी एंड माय टीम फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली वैष्णवी, एग्जैक्टली। एक सेकंड में जरा प्रियांशी का सवाल है कि व्हाई नॉट लिसनर, व्हाई डिड आई से दैट हु द वन हु इज बीइंग एड्रेस्ड? देखो, अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो एकांश भी तो सुन रहा है, बात तो मेरी और आपकी हो रही है, हाँ या ना? पर एकांश भी सुन रहा है। बोलो एकांश, तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? है ना? लेकिन बात तो मैं और प्रियांशी कर रहे थे। प्रियांशी, यू गॉट माय आंसर? ये बात तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अगर एक साथ एक सेंटेंस में आएंगे तो इनका ऑर्डर होता है सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। जैसे कि अभी वैष्णवी ने पूछा एक क्वेश्चन, शी ऑलरेडी सेंट दिस क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड द क्वेश्चन वाज लाइक अबाउट मी एंड माय टीम। सो पूरी तरह गलत हो गया ना ये तो, अगर मैं बोलूं कि मी एंड माय टीम, ये तो पूरी तरह गलत हो गया। सबसे पहले तो मी नहीं आएगा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे जोड़ूं कि मी एंड माय टीम हैज और हैव डिसाइडेड डॉट 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 समथिंग, ठीक है? तो सबसे पहले तो यहाँ आई आएगा, आई एंड माय टीम। एंड अभी अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन ये कहता है कि राइट ऑर्डर क्या होता है? सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, यानी कि माय टीम एंड आई डॉट डॉट डॉट, ठीक है? सो अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो ऑर्डर क्या रहेगा? जिसको एड्रेस कर रहे हैं सबसे ज्यादा इज्जत उसको देंगे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको फिर रखेंगे, और खुद को लास्ट में रखा जाएगा। ये समझ में आता है? यस और नो? बढ़े आगे? वेरी गुड, शाबाश। नाउ, अब सॉरी, एक क्वेश्चन जो और बनता है एप्टीट्यूड में प्रोनाउंस को लेके, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो होते हैं कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर जहां सेल्फ यूज होता है, ठीक है? सेल्फ वाले भी काफी एरर्स बनते हैं सेंटेंसेस में, हमें पता नहीं चलता। सो बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है, जब वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हाँ, आई लुक्ड एट मी, सो आई इज अ सब्जेक्ट, मी इज एन ऑब्जेक्ट। सो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली एक ही होते हैं, भाई ग्रामेटिकली तो हमने आई को सब्जेक्ट बोला और मी को ऑब्जेक्ट बोला, यस और नो? ये समझ में आती है बात, हाँ या ना? ग्रामेटिकली तो हमने आई को सब्जेक्ट बोला और मी को ऑब्जेक्ट बोला, लेकिन प्रैक्टिकली तो एक ही है ना दोनों। तो जैसे ही हम किसी जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रैक्टिकली सेम होता है, ह्यूमनली प्रैक्टिकली जैसे भी मान लो उसको, जब वो प्रैक्टिकली सेम होता है तो हम सेल्फ वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है? एक कुछ क्वेश्चंस बनते हैं सेल्फ वाले प्रोनाउन पे। देयर इज वन मोर यूसेज ऑफ सेल्फ प्रोनाउन, देयर इज वन मोर यूसेज ऑफ सेल्फ वाला प्रोनाउन, दैट इज एम्फेटिक।
ध्यान दो, वर्ड एम्फेटिक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे ध्यान रहेगा। एम्फेटिक बना है एम्फेसिस से। व्हाट इज एम्फेसिस बाय द वे? व्हाट इज एम्फेसिस? जोर डालना, इंपॉर्टेंस देना, टू ले स्ट्रेस अपॉन। यस एग्जैक्टली वैष्णवी, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो जब हमको सब्जेक्ट पे और एम्फेसिस डालना होता है ना, किसने किया ये? सर मैंने किया ये। क्या बात कर रहे हो, तुमने तुमने अकेले कर लिया? यस सर आई डिड इट। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता। अगर मैं किसकी हेल्प की, कैसे किया? नहीं सर आई माई सेल्फ डिड इट। Yes, exactly, Vaishnavi. I myself did it. So I wanted to lay stress upon the subject. I myself. So ये self वाला pronoun का second usage है. To lay stress upon the subject. So self सिर्फ और सिर्फ इन दो cases में ही use होता है. ठीक है? Done. Now the third, ये तो हो गए self वाले. अब relative pronoun, self वाला pronoun and the third one. So third case आपका आता है connectors का. कनेक्टर्स का। अब कनेक्टर्स यानी कि हु, whom, whose, which and that। ठीक है। अगर इसमें आपके एरर हो, अगर आपको चार ऑप्शन जो मिलेंगे एग्जाम में, अगर उन चार ऑप्शन में हु और whom का डिफरेंस है, दो ऑप्शन में हु है और दो ऑप्शन में whom है, क्या आपको इसको पिक करना आता है? क्या आपको इसको पिक करना आता है कि हु कहां पर आएगा, whom कहां पर आएगा? आप उठा सकते हैं डिफरेंस? हम्म। सो अब इसके लिए एक तो प्रॉपर इलेबोरेटेड सेशन है शायद प्रोनाउंस का, आई डोंट नो, बट मैं फिर भी एक बार आपको क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ। सो सबसे पहले अपन हु और हुम में देख लेते हैं। सो अगर मैं कहूं कि शी इज द गर्ल हु राइड्स, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा एक सेकेंड बस। शी इज द गर्ल, she rides Harley. She is the girl. She rides Harley. So ये दो सेंटेंसेस थे। कौन सी लड़की बात है? She is the girl. She rides Harley. है ना? ठीक है। अपन स्टीरियोटाइप वाले सेंटेंस नहीं बोलते हैं बॉस। अपने को स्टीरियोटाइप बिल्कुल पसंद नहीं है ना? हाँ, हार्ले बोलेंगे तो ही बोलेंगे, और शी लाइक्स नाइस आउटफिट्स बोलेंगे तो शी बोलेंगे। अपन ऐसे कैटेगरी को बिलोंग समहाउ नहीं करते हैं। सो अपन मानते हैं कि शी इज द गर्ल, शी राइड्स हार्ले, है ना? जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। चलिए अब इन दोनों को कनेक्ट कर दें एक बार प्लीज। हाँ, कैन यू हेल्प मी कनेक्टिंग these sentences? वेरी गुड प्रियांशी, बिल्कुल। ये गेम ये है ही नहीं, गेम तो भी शुरू होगा। सो शी इज द गर्ल हु राइड्स हार्ले, चलेगा? ठीक है। अच्छा जी, चलो अब एक और सेंटेंस पे आते हैं हम। अब एक सेंटेंस पे और आते हैं। ओके, सो लेट्स से रिया is the actor. Riya is the actor. Okay. Everyone loves to talk about her. Riya is the actor. Riya is the actor. Everyone loves to talk about her. ठीक है? हाँ, मनु तो ध्यान लगा ले पढ़ाई पे यार। देखो रिया चक्रवर्ती याद आ रही है अब। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जनता ने बिल्कुल सही बताया। अपन क्या लगाएंगे यहाँ पर? कनेक्टर क्या यूज होगा? होम आएगा, है ना? यहाँ पर कनेक्टर कौन सा आएगा? यहाँ पर आएगा कनेक्टर होम। और हमने क्या क्या रिजेक्ट किया यहाँ से? क्या हटाया हमने? हर। ठीक है। यहाँ हमने क्या हटाया था? शी। और क्या आया था? हु। ठीक है।
ये ध्यान दे रहे हो, समझ पा रहे हो? ये शी हटाया तो हु आया, हर हटाया तो हुम आया। ये समझ में आ गया यहां तक? साथ साथ चल रहे हो? बिकॉज इसके बाद सवाल है, सवाल इसके बाद है। अब सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गाइस कि आपको शी और हर में डिफरेंस पता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शी एंड हर? ग्रामेटिकली पूछ रहा हूं। कौन था ये नाउन प्रोनाउन वाला? प्रियांशी। बेटा ऐसी गंदी बातें नहीं करते। क्या कर रहे हो यार बेटा? मतलब इतना पूरा पढ़ा दिया मैंने, 3 महीने से मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। जो लोग शुरू से साथ साथ पढ़ रहे हैं, मैंने को तो गलत कर दिया मैंने? स्ट्रक्चरल ग्रामर रिवीजन मुझे पूरा शुरू से पढ़ाना चाहिए था, अगर आपको शी और हर का डिफरेंस नहीं पता है तो। कोई तो बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शी एंड हर? मैं जा रहा हूं मतलब यूं भगवान ऐसे उठा ले मेरे को नहीं, इन सबको ऐसे ऐसे वाली फीलिंग आ गई है अभी। हम्म। अरे यार बेटा ऐसे मत करो, मतलब मैं, क्या होगा मेरा? हाँ चलो आओ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब समझ में आ गया? शी बॉट अ गिफ्ट। हम्म। शी बॉट अ गिफ्ट एंड शी, लेट्स से ही, ये ही गिफ्ट लाते हुए ही अच्छे लगते हैं थोड़े। ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। अब बताओ डिफरेंस बिटवीन शी एंड हर। वेदांशी पजेसिव प्रोनाउन नहीं बेटा, सिंपल है। शी बॉट अ गिफ्ट, हु बॉट द गिफ्ट? शी, डूअर, सब्जेक्ट। ही बॉट अ गिफ्ट किसके लिए? हर के लिए, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डज द एक्शन, और किसके लिए होता है एक्शन? ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जैक्टली रोहन, शाबाश। एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। शी अगर है तो वो डूअर है, सब्जेक्ट। और अगर हर है यहां पे, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। शी बॉट अ गिफ्ट फॉर, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, ये ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट था यहां पे। शी बॉट अ गिफ्ट फॉर हिम, तो हिम क्या हुआ? हिम क्या हुआ? याद आ गया अब सब कुछ? हिम ऑब्जेक्ट हो गया ना। हाँ, तभी तो मैंने कहा, देखो ना भाई, ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। ये ही अच्छे लगते हैं गिफ्ट लाते हुए, उनको लाने दो, कुछ तो करे ढंग का काम। सो ही बॉट अ गिफ्ट फॉर हर, है ना? ये डूअर है। और किसके लिए लाया? हर के लिए, वो ऑब्जेक्ट है। पीछे आए जरा वापस कहानी में। जब हमने हर हटाया था तो हमने क्या हटाया था? बेसिकली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या ग्रामेटिकली क्या हटाया था जब हमने हर हटाया? तो ऑब्जेक्ट हटाया। तो ध्यान से देखो एकदम, चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना? ये देखो, तो हमने whom यूज किया, ठीक है? ठीक है, हाँ कि ना? और जब हमने शी हटाया, यानी कि सब्जेक्ट को रिमूव किया, तो हमने क्या यूज किया? हु यूज किया। ओके। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्वेश्चन है ये ग्रामर, ग्रामर के एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड टेस्ट की ग्रामर क्वेश्चंस में हु और हुम का डिफरेंस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पाया जाता है ये। तो जब हमने शी यानी कि सब्जेक्ट को रिमूव किया तो हमने हु लगाया, जब हमने ऑब्जेक्ट को रिमूव किया तो हमने हुम लगाया। जिंदगी हो गई तुम लोगों को एक सवाल पूछते हुए लोगों से, whom आर यू टॉकिंग टू? ये सवाल पूछते हो ना? पूछते हो? ये किस पूछते हो यूजुअली अपनी लाइफ में, whom आर यू टॉकिंग टू? राइट? क्या इसका एक हाइपोथेटिकल आंसर देते हैं? इसका एक हाइपोथेटिकल आंसर देते हैं। तो यू तो बन गया आई, आर बन गया एम, है ना? आई एम टॉकिंग टू शक्तिमान, ठीक है? आई एम टॉकिंग टू शक्तिमान, समझ में आ गया? अब इस शक्तिमान का लगाओ प्रोनाउन, ठीक है? क्वेश्चन किससे शुरू हुआ था? क्वेश्चन किससे शुरू हुआ? whom से। जवाब किससे मिला? ऑब्जेक्ट हिम से, ठीक है? रास्ते में मिल गए, अगर आप जिनसे बात हो रही थी वो कभी रास्ते में मिल गए तो सवाल क्या होगा? अगर कभी रास्ते में मिल गए तो सवाल क्या होगा? हु इज ही? यस और नो?
हु इज ही, तो जवाब क्या बनेगा? ही इज शक्तिमान। ही, हु, हुम, हिम। अब आता है जहां तक समझ में आया। हम्म, यस वैष्णवी, ही इज माय फ्रेंड। जब क्वेश्चन था हु इज ही, तो आपने कहा ही इज। whom are you talking to? then I am talking to him। यानी कि जब भी आपको whomever या whoever में कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जितना जैसे मैं समझा रहा हूं उतना अगर टिप्स पे याद रहेगा ना ऐसे, तब ही क्वेश्चन सही होगा। हु और whom आते ही सबसे पहले दो ऑप्शन रिजेक्ट किया करो कोई से। ठीक है, कैसे रिजेक्ट होंगे? जब भी लाइफ में हु और whom इन एनी क्वेश्चन, ये वाला जो अभी कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि एग्जाम से ठीक पहले वाला, ओनली ऑन टिप्स विदाउट ओपनिंग बुक्स, स्टडी करना। ठीक है, सो so basically when we talk about who slash whom, so who slash whom क्या होता है? whenever you figure out something called कि who लगाएं कि whom लगाएं, so क्या करना, उसका आंसर देके देखो। उसका आंसर ऐसे दो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको आपको आप अटक गए कहीं पे कि मैं हु लगाऊं कि हुम लगाऊं, सो हाइपोथेटिकली उसका आंसर देख लो। अगर उसका आंसर ही यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, हाइपोथेटिकली अगर आंसर उसका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन किससे शुरू होगा? अगर हाइपोथेटिकली आंसर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सो हु से उसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और अगर हाइपोथेटिकली आंसर किस पे खत्म हो रहा है? हिम पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे। हाँ, लाइक एक काम करते हैं, अब इसको ऐसे पूछते हैं जैसे कि योर फादर सेज दैट you may invite whoever slash whomever to the party। ठीक है, you may invite whoever slash whomever to the party। ठीक है, अब अपने को समझ में नहीं आ रहा, आई नो अभी आपको आंसर आ गया होगा इसका, क्योंकि अभी तो अपन इसी को डिस्कस कर रहे हैं, पर जो तरीका सिखा रहा हूं मैं वो अपने को समझना है कि whoever लगाएं कि whomever लगाएं। यू मे इनवाइट whoever slash whomever to the party। तो इसका बहुत अच्छा तरीका है, इसका आंसर देके देख लो। मान लो ये पापा ने बोला है आपको कि भाई बेटा तेरा आई एम क्लियर हो गया है, अब तू जाने से पहले एक पार्टी दे दे। तो आपने कहा ठीक है, तो पार्टी कर लेते हैं। तो किसको बुलाएं? अरे यू मे इनवाइट whoever slash whomever to the party। हाइपोथेटिकली आंसर देके देख लो इसका। आई विल इनवाइट, क्योंकि यू का तो आप आई बन गए खुद ही, सो आई विल इनवाइट किसको? माय फ्रेंड्स। आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स, राइट? ये आंसर होगा, आई विल इनवाइट माय फ्रेंड्स, ये सही है। अब माय फ्रेंड्स को हम माय फ्रेंड, आई विल इनवाइट माय फ्रेंड, so my friend would be replaced by, my friend would be replaced by him, yes or no? My friend would be replaced by him। अगर him जवाब है तो सवाल किससे शुरू होगा? अगर जवाब him से आ रहा है तो जवाब किससे होगा? whom से। आती बात समझ में? You may invite whomever to the party। so बहुत आसान तरीका है याद रखने का, ऐसे याद रखो, एक मंत्र याद कर लो ये। ठीक है, क्या मंत्र है? who, he, whom, him। who, he, whom, him। बोलो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ, हाथ ऊपर कर लो, ऐसे ऐसे करके ना दिन में 3 बार बोला करो। और कोई घर पे आए गेस्ट तो ज्यादा कर दिया करो, हाँ, दोबारा आएंगे नहीं फिर वो लोग। हाँ, हु, ही, हुम, हिम, ऐसे दिन में 3-4 बार बोलो। और जैसे आसपास लोग दिख जाए ना, कोई पैसे वैसे मांगने आए घर पे या कोई कुछ और हो गया किसी बात पे आए, तो ऐसे नींबू वींबू ऐसे नमक मिर्ची वगैरह ऐसे सामने रख लेना, और ऐसे बाल खोल के 2-4 बार ऐसे बोल लेना, बस एक बार, बस फिर दोबारा कोई नहीं आएगा लाइफ में। ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए, ओके।
Now let's move ahead, guys. So if you say so, can I give you few sentences? There might be a repeat. There might be a repeat of certain things, but तो एक काम करते हैं. My parents are confused if I'm attending classes. Why? Why are they confused that you're attending classes? क्या हो गया? अरे भाई, जिंदगी में हंसना तो होना ही चाहिए. एक आपको एक रुक जाओ, देखो एक फाइल अटैच कर देता हूं मैं प्रोनाउंस की. ओहो, गिव मी 1 minute. जस्ट गिव मी नॉट इवन 1 minute. हाँ जी. सो एक सेकेंड, इसको जरा जूम किया जाए. हाँ जी. अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार करेक्ट करते जाएं. Quick revision. First one, read it and keep telling me, okay? So the battalion fought extraordinarily होना चाहिए, but in the end they laid down their weapons. The battalion fought, हाँ exactly, the battalion क्या हो गया? Collective noun. Battalion क्या हो गया? Collective noun. तो collective noun singular, यहाँ पर क्या हो जाएगा? It laid down. हाँ, the battalion fought extraordinarily, but in the end it laid down its weapons. बिल्कुल सही बात. अच्छा, एक सेकंड जरा मुझे एक बार ये बता दो कि इट्स आएगा कौन सा वाला इट्स आएगा? इट लेड डाउन इट्स वेपन्स. अच्छा, तो ये वाला आएगा, राइट? तो ये वाला क्या होता है फिर? यस, शाबाश, ये होता है इट इज. तो अब ये कितना आसान लग रहा है, और यहाँ पे सब आंसर कर रहे हैं. फिर जब एग्जाम में आता है तो फिर एक तो भूल जाते हो. मैं जब कहता हूँ कई बार बहुत बड़ा सा सेंटेंस होता है, एक छोटी सी एरर होती है कि अपोस्ट्रोफ हटा दिया या लगा दिया, है ना? अपोस्ट्रोफ हटा दिया या लगा दिया, ऐसी छोटी सी करके ना उसमें एरर क्रिएट हो जाती है. ठीक है, सो इन पे ध्यान देना है. इसलिए बार बार, मुझे भी पता है आपको आता है, बट जस्ट टू ऐसा टिप्स पे रखना है ना, डोरमेंट नहीं होने देना है, एक्टिव रखना है. मजाक तो नो. आई नो बेटा, आई नो. अच्छा, एक सवाल और है मेरा, वो ये कि एक सेकेंड, हाँ, कि इन द एंड और एट द एंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अफिनिटी बढ़ानी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी, सब पता है आपको. नो, बिफोर 3 months ऑफ दिस एग्जामिनेशन आई टेल यू द ट्रूथ विच आई कैन नॉट इनिशियली बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ये जो स्टूडेंट्स जिस तरह पढ़ते हैं ना कि एग्जाम में ये आता है क्या सर, एग्जाम में नहीं आता है क्या सर, ऐसे पढ़ाई नहीं होती. स्पेशली लैंग्वेज में जितना सामने आ रहा है ना, आप एग्जाम की बेसिस पे क्या कर सकते हो कि पिछले 5-7 साल में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उन्हें कर लो. बाकी आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है. अच्छा देखो, अद्रिका टाइम पोजीशन मतलब मैं समझा नहीं बेटा. इन द एंड आई वांट टू समराइज माय स्पीच. एट द एंड किसी पॉइंट के लिए. एट द एंड ऑफ द डे ही फेल्ट. हाँ, ठीक है. आई थिंक यू गाइज हैव सम आइडिया. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. इंटेलिजेंट हो सब लोग एकदम, बिल्कुल. इन द एंड क्या होता है कि जब अपन पिक्चर देख रहे हैं ना, है ना, तो अगर अपन 120 मिनट्स की मूवी देख रहे हैं तो लास्ट के जो 15 मिनट्स में जब नौकर ने खून किया होता है, पता लग रहा होता है कि कैसे किया था फिर उसने फाइनली, तो लास्ट के 15-20 मिनट की जो फिल्म होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इन दी एंड. यानी कि आपने जब अपनी कॉपी में, नोट्स में जब मैंने कुछ बताया था, तो उसी किताब में उस फूल के पीछे तुमने पिछली, ओके लेट्स नॉट बी पोएटिक. क्लास की तरह रहने देते. सो लास्ट के जो कुछ पन्नों में, आखिरी के कुछ पन्नों में जब तुमने कुछ लिखा होता है तो उसे तुम कहते हो इन दी एंड. ठीक है,
यानी मूवी के लास्ट के 15-20 मिनट में जो हो रहा होता है तो मैं उसको कहते हैं इन दी एंड। नाउ एट दी एंड क्या होता है? जो वो ऐसा पेज पलट के लास्ट पेज पे जो लिखा होता है वो होता है एट दी एंड। यानी फाइनली, अरे छोड़ो ना सर, पूरी बात मत बताओ, आप तो बताओ कि फाइनली खून किसने किया था। So that is at the end. At the end, what happened? What was he picked up? Was he caught or not? Right? At the end indicates something very specific. हाँ बिल्कुल end में is at the end. ठीक है? And see, this is the same. In time और on time का difference पता है ना अपने को? In time और on time का difference पता है ना सबको? अगर मैंने आपको 8 बजे मिलने का बोला और मैं 8 बजे आया मिलने आपसे, तो मैं क्या हूं? इन टाइम हूं, ऑन टाइम हूं? ऑन, राइट? और अगर मैं 7:45 आ गया तो इन टाइम। ठीक है, मैं 8:15 आया तो ये देखो, प्रियांशी इज टेलिंग मी, अब वेरी गुड, आई वाज वेटिंग फॉर दिस ओनली, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। प्रियांशी सेइंग ऑफ टाइम, आशुतोष इज सेइंग अबव टाइम, आकांक्षा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेट, सिंपल लेट। आशुतोष इज सेइंग व्हाट इज दिस बिहेवियर। ओके ओके ओके, कूल, ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर से वापस एक बार। हाँ जी, चलें बढ़े जिंदगी में। हम्म। Why? What do you want? Shut up. Shut up. हाँ, नहीं नहीं आपको नहीं, सॉरी। So आ जाओ, इधर आ जाओ। The faculty voted unanimously to write one long research paper instead of several short essays for their final grade. Quick, 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 quick. Yes, exactly. For its final grade. कौन सा वाला इट्स आएगा? विदाउट apostrophe वाला, है ना? बिकॉज फैकल्टी क्या है? फैकल्टी इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, है ना? फैकल्टी इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन, तो इट्स आ जाएगा। द फैकल्टी वोटेड यूनानिमसली टू राइट वन लॉन्ग रिसर्च पेपर इंस्टेड ऑफ सेवरल शॉर्ट एसेज फॉर इट्स फाइनल ग्रेड, बिकॉज फैकल्टी इज अ कलेक्टिव नाउन। थर्ड हमने अभी अभी किया है, सॉल्व करें जरा। यू में इनवाइट क्या होगा? whoever or whomever. Prachi, you're absolutely right. Vaishnavi, Akanksha, Mrinal, Priyanshi, Mrinal, कितना अच्छा नाम है बेटा आपका, बहुत ही खूबसूरत। वेदांशी, माही, सबके अच्छे हैं, मेरा ही नाम है जो मुझे ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा, मेरा कॉमन है और क्या। हाँ, चलिए फोर्थ, इफ द टीचर इज नॉट एलिजिबल दे आर रेफर टू एन इंस्टीट्यूशन दैट कैन डील विद देयर सिचुएशन। If the teacher is not eligible, आशुतोष ने मेरा दिल रख लिया, इसने फाइनली कहा कि आपसे भी ज्यादा कॉमन नाम है अभिषेक। यस, हाँ, ही और शी। सो बेसिकली ऑप्शन में दे नहीं आएगा, कोई भी ही या शी हो सकता है वहां पे, बिकॉज इफ द टीचर सिंगुलर। सो जो अभी हमने ये 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 सेंटेंसेस किए हैं, इसे हम कहते हैं नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट। हाय निधि, गुड इवनिंग। लेट क्यों आए हो तुम लोग? अगर पढ़ना था तो जल्दी क्यों नहीं है टाइम पे? हम्म। मैंने तो ठीक से प्रोनाउंस किया ना मृणाल। चलो अब फिफ्थ पे आओ एक बार जरा। नाउ हु विल टेल मी फिफ्थ वन? टेल मी। Despite a great trouble between them, they really love one another. Exactly. Very good. Shabash. So basically, each other and one another. ये दो आपके सपोर्टिव प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली। दोनों में फर्क क्या होता है ईच अदर और वन अनदर में? सर देन दे विल बी नॉट आर। अच्छा, नहीं बेटा, अच्छा मैं समझा नहीं, अद्रिका शायद कुछ रह गया बच्चे मुझसे। वंस न्यूट्रल, अरे ना रे बाबा, बिगिनर्स का स्ट्रक्चरल ग्रामर क्लास कब होगा? बिगिनर्स का स्ट्रक्चरल ग्रामर क्लास नहीं होगा, बिगिनर्स का ग्रामर का क्लास होगा। ये तो रिवीजन है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है अभी। हाँ एग्जैक्टली रोहन, शाबाश। वन अनदर टू के लिए नहीं होता है, वन अनदर होता है मोर देन टू। ये साइन ठीक लगाया ना मैंने, यही होता है ना? हाँ हाँ, यही होता है।
मोर देन टू जब होता है तो क्या आएगा, वन अनदर। और जब दो होंगे तो होगा आपका ईच अदर। ठीक है, अब यहां दो थे, ये कैसे पता लगा जरा बताओगे मुझे? यहां दो थे, ये कैसे पता लगा फिफ्थ में? एग्जैक्टली exactly, शाबाश, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डिस्पाइट अ ग्रेट ट्रबल बिटवीन, बिटवीन आ गया, इसका मतलब दो हैं, बिटवीन देम दे रियली लव ईच अदर। ठीक है, वेरी गुड। और अगर मेरे को वन अनदर रखना हो तो क्या करूं? अगर मुझे, हाँ, अमंग, बहुत बढ़िया। अब स्पर्श बताएगा अमंग और अमंगस्ट का डिफरेंस। नाउ स्पर्श ओनली विल टेल अस द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। बताओ मुन्ना, मुन्ना बताओ। हम्म, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो कोई भी बताओ। अमंग ग्रुप के लिए, अमंग्स दो के लिए। अरे आशुतोष, फिर बिटवीन कब आएगा? ना रे, अमंग और ओहो, अभी तो बताया तुम लोगों ने, वो तो बिटवीन हो गया ना, दो वाला तो। ये तो, हाँ, अमंगस्ट फिजिकली के लिए, ओहो। आकांक्षा, अमंग इज फॉर लार्जर ग्रुप। ये होता है, देखो ये पता है क्या है, ये बिल्कुल वैसे वाला है। आई टेल यू, आई नहीं, ये देखो, सो दिस इज अमेजिंग। ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होना चाहिए यहाँ पे, जब अमंग और अमंगस्ट, किसी ने नहीं बोला कि सर नहीं आता, और आप आंसर देख रहे हो अमंगस्ट फिजिकली के लिए। आकांक्षा ने कहा और बड़ा कर दो ग्रुप को। वैष्णवी ने कहा जब तीन लोग साथ में हो तो ओके, प्रियांशी यू आर राइट, प्रियांशी इज राइट। प्रियांशी ने कहा तुम सब हम सब। ओके हाँ, सो मैंने क्या किया, मैं कुछ चॉकलेट्स लाया, मुझे बहुत मजा आ रहा है एंड आई वाज इन अ वेरी वेरी बैड मूड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ द क्लास। चलो, तो सबसे पहले अमंगस्ट, देखो मैंने क्या हुआ, मैं आई ब्रॉट सम चॉकलेट्स, और मैंने तुम सबको चॉकलेट्स दे दी। ठीक है, मैंने देखा सारी सारी की सारी, मैंने कहा सब 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 तुम बांट लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम सब बांट लो आपस में, जाओ जी लो अपनी जिंदगी बेटा, जाओ, मेरा वचन, ये शासन, ये लो, जाओ खा लो सारी चॉकलेट, तुम खा लो, सब एक्सपायरी डेट है। तो ये क्या होगा, यू गो एंड डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट अमंग योर सेल्स। ठीक है, और एक दिन मैं फिर से बहुत सारी चॉकलेट लेकर आया, मैंने कहा आओ। हाँ, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो अमंगस्ट कब होगा, जब मैंने कहा कि मैं बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया और मैंने कहा कि आओ हम सब आपस में बांट लेते हैं। तो बहुत सारी चॉकलेट में से मैंने एक निकाल के तुमको दी, बहुत सारी मैंने रखी, एक तुमको देके मैंने कहा जाओ तुम सब भी इसको आपस में बांट लो। सो अमंगस्ट आवर सेल्व्स। ठीक है, अब याद रहेगा। एक तो क्या है कि ग्रामर का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ग्रामर पढ़ाने वाले भी ना बड़े ग्रामर ग्रामर तरीके से पढ़ा देते हैं, तो बेचारा बच्चा तो सोचते हैं कि एकदम एक सेकंड अलजेब्रा कॉन्सेप्ट याद रखूं कि ग्रामर की कॉन्सेप्ट याद रखूं, इतनी इज्जत थोड़ी मिलेगी अब ग्रामर को। हम्म, अरे ग्रामर को इतनी इज्जत थोड़ी देंगे यार लाइफ में, एक लैंग्वेज ही तो है, क्या हो गया। लोग तो बिना कहे समझा देते हैं, यहाँ तो हम फिर भी वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो याद रखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे भी चिपका लो, ऐसा पिन कर लो माइंड में जैसे हो जाए। ठीक है, बड़े जिंदगी में आगे, तो वो कहाँ गया हमारा, ये रहा। अरे वाह, आज तो मैंने बिल्कुल टीचर वाले नोट्स बनाए, एकदम टीचर टीचर। ठीक है, अरे 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 यार, एक सेकंड एक सेकंड। हम्म, हम्म, अब ठीक है, चलो हाँ अच्छा, आपने तो बता भी दिया, सॉरी बेटा, मैं तो पीछे रह गया था। द प्रोफेसर, अब ये ठीक है, आंसर ठीक है, अभी बताओ मुझे प्रोफेसर क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ये?
क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है ना, क्यों? क्योंकि डूअर होता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। तो प्रोफेसर ने क्या डूइंग की? अपॉइंट किया। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को किया। तो राज और राहुल के तो नाम आ गए, लेकिन ये कौन होगा? मी, है ना। मी इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म, अस ऑब्जेक्ट फॉर्म। और अगर प्रोफेसर को रिप्लेस करते तो ही कर देते, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म होती। ये याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एकदम पिन करके रखना माइंड में। क्लियर? डन। नेक्स्ट, nevertheless in this manner of gloom I now propose to me a sojourn of some week। बोलो। हाँ, I now propose to, अब अपने बात की थी ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद है? सेल्फ वाला प्रोनाउन, प्रैक्टिकली एक ही तो है ये। I now propose to myself। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। कोई इशू? अगर किसी को भी इशू तो मुझे रोक लेना बेटा। अब एट्थ, आकांक्षा एंड आई नहीं होगा बेटा। लेट, देखो क्या होता है कि कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं, जैसे लेट, बिटवीन, हाँ, फॉर, ये वो प्रेपोजिशंस हैं जिनके साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। इसमें कोई मतलब ग्रामर का कोई रूल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तो याद रखना, ग्रामर के रूल्स बिल्कुल ऐसा रूल वर्ड ही मत दो ग्रामर को। क्या है रूल? कोई रॉकेट साइंस है ना? सिंपल है कि इसका ना याद ही मत करो कुछ भी, ध्यान रख लो बस। लेट बिटवीन फॉर के साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, हिम ही आएगा, लेट ही कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नाइन्थ, नाइन्थ, एक सेकेंड। हम्म, हाँ जी। सो हम कहाँ गए? हाँ, ही, आई एंड यू। यू, हिम क्यों आएगा अनुष्का? हिम क्यों आएगा? वी हैव बीन इनवाइटेड। नो, सब्जेक्ट ही तो चाहिए। यू, ही एंड आई, एग्जैक्टली, यू, ही एंड आई, सब्जेक्ट ही तो चाहिए। उसको ऑब्जेक्ट क्यों बदलोगे जबरदस्ती? बहुत लोग इंडियंस का प्रॉब्लम होता है, मी हैविंग फन। अरे मी हैविंग फन कैसे हो सकता है? हम्म, हो गया ना वो तो। लेट हिम एंड मी डू इट टुगेदर, लेट के साथ हिम आएगा। हम्म, ठीक है। हाँ, सो एक तो अब जब भी कभी टेक्स्ट करो किसी को, या किसी का मैसेज आए या कुछ हो, तो ये मी और आए, इन पे ना ध्यान जाना चाहिए। लोग बहुत गलतियां करते हैं। मी गोइंग फॉर पार्टी, मी हैविंग फन, लमी, हाँ, यू एंड आई। यस, सो इसमें ऑर्डर अपने को याद है ही, ऑर्डर मैंने आपको याद दिला दिया था कि सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, 2 3 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टेंथ, टेंथ। अब इसमें पता है क्या है टेंथ में? टेंथ में है प्रोनाउन पैरेललिज्म। हाँ, टेंथ में है प्रोनाउन पैरेललिज्म। आई नो ऑफ अ मैन हु वाज देयर एंड नो वन सॉ हिम। यहां पे तो आपने ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज कर लिया, यहां आपने कनेक्टर यूज कर लिया, मतलब अपने हिसाब से सेंटेंस चल रहा है पूरा। देख रहे हो आप? आई नो ऑफ अ मैन, मैं एक इंसान के बारे में जानता हूं। ऐसे लगेगा ना जैसे कोई हिंदी डब कर रहे हैं अपन। आई नो ऑफ अ मैन, मैं एक इंसान के बारे में जानता हूं। हु वॉज देयर, जो वहां था। अब देखना, ठीक है, अब आएगा ट्विस्ट। आई नो ऑफ अ मैन हु वॉज देयर एंड नो वन सॉ हिम, मतलब जो वहां था और उसे किसी ने नहीं देखा, या जो वहां था और जिसे किसी ने नहीं देखा। भाई अगर ये हिम रखना है तो यहां पर ही रखो। आई नो ऑफ अ मैन ही वाज देयर एंड एंड नो वन सॉ हिम। या फिर बोलो आई नो ऑफ अ मैन हु वाज देयर एंड whom नो वन सॉ। हु वाज देयर एंड whom नो वन सॉ। हु वाज देयर एंड whom नो वन सॉ। राइट? हाँ, जो वहां था और जिसे किसी ने नहीं देखा, प्रोनाउन पैरेललिज्म। व्हाट डू वी कॉल इट? प्रोनाउन पैरेललिज्म। अब जिस जिसको पैरेललिज्म नहीं पता है, तो सबसे पहले तो बिगनर बैच में पैरेललिज्म जब हो तो साथ में पढ़ लेना। और अगर
फिर भी नहीं वेट करना हो, पढ़ना हो, तो प्लेलिस्ट, यूट्यूब प्लेलिस्ट पे पैरेललिज्म का पूरा सेशन है। ओके, डन। हाँ ना करो तो फिर आगे बढ़े जिंदगी में। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? इट्स वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ, तो ये हो गया, आई नो ऑफ अ मैन हु वाज देयर एंड whom नो वन सॉ। ठीक है, 11th, a deafening crash made every patron, waiter, and manager turn their head in Jia's direction. Exactly, Anushka. Shabash. Turn. हाँ, his or her basically. His or her actually सही ग्रामर होता नहीं, सही इंग्लिश होती नहीं है, पर वो सेंटेंस में है तो वो जैसे भी, मतलब उन दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, पॉइंट है सिंगुलर आएगा। अ डेफनिंग क्रैश मेड एवरी patron, waiter, and manager. So every ये they'll always be followed by singular. ठीक है, डन। बट एंड है ना सर? नहीं नहीं बेटा, ये एवरी पेट्रन, एवरी वेटर एंड एवरी मैनेजर ऐसे है ये। ठीक है, कोलन है ना यहाँ पर भी। सो एवरी पेट्रन, वेटर एंड मैनेजर, मतलब एवरी पेट्रन, एवरी वेटर, एवरी मैनेजर, दिस इज लाइक दैट। ओके, हाँ। 12th, ट्वेल्थ, Bin Laden is regurgitating the arguments of Western commentators and using his to and using them हो जाएगा ये, and using them because arguments है ना। Bin Laden is regurgitating the arguments of Western commentators and using them to justify his crime. Right, Rohan? Exactly. Yes, Prince. हाँ जी, 13th. We found ourselves easy. हाँ, 14th. We found ourselves, बिल्कुल ठीक है। We found ourselves. कौन सा वाला प्रोनाउन होता है ये जरा बताएं एक बार। कौन सा वाला प्रोनाउन होता है ये? नहीं नहीं, 13th, ये जो ourselves है, रिफ्लेक्सिव। एग्जैक्टली। नाउ माही, अद्रिका, रोहन, वैष्णवी एंड ऑल, देखो आपको ना रिफ्लेक्सिव अगर नहीं भी याद रहे तो आपको ऐसे टिप्स पे ही होना चाहिए कि सर वो सेल्फ वाला प्रोनाउन, सेल्फ वाला प्रोनाउन सर अपने को पता है सर दो जगह यूज होता है सिर्फ, जब तो या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक हो या फिर वो एम्फेटिक यूज करना हो, यानी कि एम्फेसिस डालना हो सब्जेक्ट पे, भले ही रिफ्लेक्सिव भूल जाओ। ठीक है, पर कोई नाम से तो याद रखोगे, अब या तो चिंटू रख लो इसका नाम या रिफ्लेक्सिव रख लो, जैसा भी याद रहे। अब आता है नेक्स्ट वन, ही इज द काइंड ऑफ अ पर्सन हुज आइडियाज। हाँ, यस, तो जैसे हु और हुम थे ऐसे ही हुज होता है। हुज तो बहुत इजी होता है यूज करना, बिकॉज हुज क्या होता है? पोजेशन। हुज किसके लिए यूज होता है? हुज इज यूज्ड फॉर पोजेशन। हुज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी नहीं ऑनेस्टली। ठीक है, सो दिस इज आद्रिका। ठीक है, हर हर कार इज रेड। सो किसकी कार है ये? हर कार, नो? यस, दिस इज आद्रिका। क्या आएगा? whose car is red. So basically anywhere you need to show possession, so ये whose आ जाएगा। यानी कि अगर मैं पूछूं mine क्या है, mine कौन सा प्रोनाउन है, so you know कि possession है। ठीक है ना? your कौन सा प्रोनाउन है, you know possession है। कहीं पर भी जो भी ये प्रोनाउंस possessive शो कर रहे हैं, they're all possession शो कर रहे हैं, they're called possessive pronouns। ठीक है, डन, मेक सेंस? हाँ जी, सो कहाँ पे हैं हम? हाँ, द डॉग हु हैज अ ब्लैक स्पॉट ऑन। एक और आज का एक कॉन्सेप्ट अगर वो हो जाएगा पूरा तो प्रोनाउन आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आई थॉट कि 2-3 टॉपिक करेंगे रिवाइज, लेकिन रिवीजन से ज्यादा अभी ये वाला रिवीजन तो शायद बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में करवाना पड़ेगा। नहीं,
वो टेल, हाँ अद्रिका यू आर एब्सोल्युटली राइट, टेल का तो इसमें वो हो ही गया है, स्पेल स्पेल चेक हो गया वो तो। लेकिन इसमें एक एक चीज है, उसको रिवाइज करवा देता हूँ, आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट, द डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट, वेर एवर यू फाइंड विच आएगा कि दैट आएगा, वो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, करवा दें जरा, रिवाइज कर लें इसको फटाफट से। सो लेट्स से द डॉग विच एंड दैट, देखते हैं दोनों में से क्या आएगा। द डॉग विच और दैट हैज अ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स टेल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, द डॉग विच और दैट, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब ऐसे एक और करते हैं, दैट हिज फुट स्लिप्ड, his foot what got, his foot slipped, which that caused him to fall. ओके, अब यहां पर भी एक डाउट है और यहां पर भी एक डाउट है कि विच लगाएं कि दैट लगाएं। ठीक है, सो बेसिकली विच और दैट किसके लिए आते हैं, विच और दैट यूज किसके लिए होते हैं, ये छोटा सा अपन देख लेते हैं। सो एक तो हो गया अपना नॉन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के अलावा जितने भी लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स हैं अपने, उन सबके लिए अपन विच एंड दैट यूज करते हैं। ठीक है, नॉन ह्यूमंस, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है, डन। प्लस एक्शंस एंड फिनोमिनास, एक्शंस और फिनोमिना, ध्यान से सुनना, जहां जहां ऐसा लगे ना कि सर एक बार दोबारा बता तो बता दूंगा मैं। अब ये क्या है, ये एक्शन है, देखो उसको ध्यान से देखो, हिज फुट स्लिप्ड, सो व्हाट कॉज्ड हिम टू फॉल। नहीं नहीं प्रज्वल, एक बार रुको बच्चे, स्लिपिंग ऑफ हिज फुट, राइट, इज दैट क्लियर, स्लिपिंग ऑफ हिज फुट, ये पूरा विच एंड दैट किसके लिए आया था, स्लिपिंग ऑफ हिज फुट, दोनों में से। अभी अभी वो नहीं देख रहे कि विच आएगा दैट आएगा, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज ये विच या दैट जो भी कनेक्टर है वो किसके लिए आया, इस पूरे एक्शन के लिए आया ना, ठीक है, यस और नो, क्लियर। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, एक होता है विच और एक होता है दैट, ये दोनों यूज होते हैं नॉन ह्यूमंस, उसमें आपके लिविंग नॉन लिविंग सब आ गए, नॉन ह्यूमंस हो गए, प्लस हो गया आपका एक्शंस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पीछे चलते हैं वापस। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, द डॉग विच और दैट हैज अ ब्लैक स्पॉट, ये दोनों आ सकते हैं क्योंकि ये तो भी नॉन ह्यूमन वाली बात है, ठीक है। लेकिन जब स्लिपिंग ऑफ द फुट की बात होगी ना, इनकी एक्शन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि विच जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन ह्यूमंस वाले केस में आता है, एक्शन और फिनोमिनास के लिए विच यूज नहीं होता, लेकिन जो दैट है वो एक्शन के लिए भी आ सकता है और नॉन ह्यूमंस के लिए भी आ सकता है। यानी कि जहां जहां विच आ सकता है वहां वहां तो दैट आ ही सकता है, लेकिन जहां दैट आएगा वहां विच नहीं आएगा। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? एक बार फिर से इन शॉर्ट, ठीक। स्पर्श, अब इन दोनों सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करो। एक सेंटेंस है जिसमें हम डॉग के लिए कनेक्टर यूज कर रहे हैं, विच या दैट, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि हु, हुज, हुम तो हम ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, और विच और दैट हम जो है वो ह्यूमंस के अलावा जो बच गया, कुर्सी, टेबल, औरो, अपना ऑर्जी, या फिर कैट, या फिर कुछ भी, ठीक है, सो उनके लिए अपन ने विच और दैट रखे हुए हैं। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है जहां पर डॉग के लिए कनेक्टर यूज हो रहा है, यहां विच और दैट दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि विच, क्योंकि दैट जो है वो नॉन ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है और एक्शंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और विच जो है वो नॉन ह्यूमंस के लिए यूज होता है। सो डॉग के लिए विच और दैट में से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो कनेक्टर यूज हो रहा है विच और दैट, वो यूज हो रहा है इस एक्शन के लिए पूरे। और जब भी एक्शन के लिए कनेक्टर चाहिए होता है, दैट he was running very fast but that couldn't help him,
So what couldn't help him? His running fast, the entire action. हाँ, तो जब एक्शन के लिए कनेक्टर चाहिए होता है, कोई कंजंक्शन चाहिए होता है, तो वो उसमें उसकी जगह विच नहीं आ सकता, उसमें तो दैट ही आएगा। ऐसे नहीं होगा माही कि दोनों ऑप्शन, एग्जामिनर ऐसा नहीं देता है, वो कहीं और होगी फिर एरर, है ना। अभी आपने ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया है ना, वो करोगे ऑप्शन में तब आ जाएगा। ठीक है, तो याद ये रखना है कि भाई दैट तो नॉन ह्यूमंस और एक्शन दोनों में यूज हो जाएगा, लेकिन विच ओनली नॉन ह्यूमंस यूज होगा, एक्शन नहीं होगा। यानी कि विच को दैट रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जहां दैट ही आना चाहिए वहां पर विच नहीं आ सकता। ठीक है, डन, दैट मेक सेंस गाइस। चलो अब एक काम करते हैं, आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे बहुत कुछ था, बट ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे। आज थर्सडे है, लेट मी रिमाइंड यू गाइस, आप लोग अपना रेडी हो जाओ अन अकेडमी कॉम्बैट ऑन संडे, ठीक है, फॉर विनिंग योर स्कॉलरशिप्स। और स्कॉलरशिप अगर यू नॉट आइंग स्कॉलरशिप के सर अभी तो इतना प्रेपरेशन नहीं हुआ है, तो भी यू कैन टेक स्टार्ट टेकिंग an academy combats the scholarship test for your better assessment। अच्छा, कल का जो क्लास होगा स्पेशल क्लास, ओके, स्पेशल क्लास जो होगा वो अपना स्ट्रक्चरल ग्रामर ही कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है, स्ट्रक्चरल ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। और जो 1 PM YT पे जो सेशन होगा, द सेशन ऑन YT ऑन 1 PM, इट्स गोना बी पैरासमरी। यस, इट्स गोना बी पैरासमरी रिवीजन, ओके। कल का सेशन भी इसी हाँ इसी कंटिन्यूएशन में कर देंगे स्पर्श, ठीक है। अच्छा, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप गाइस, जॉइन अस देयर एंड टेक हेल्प फ्रॉम लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ये अब अपन आज नहीं करेंगे, कल अपन पैरेललिज्म से कंटिन्यू कर लेंगे, ओके। पैरेललिज्म के क्वेश्चंस वगैरह ये अपना कल का रहेगा। सो आज प्रोनाउन हुआ है, आई थॉट कि कम से कम 3 टॉपिक हो जाते हैं, पर कल कर लेंगे। And before we sign off, let me just remind you, pick up your structured preparation, either PLUS or ICONIC. As a suggestion, I would always say that go for ICONIC. It's vast, it's expanded. Chaliye. So, and this is the fee structure, guys. When you go for long term, it's always cost effective. You can use my code, that's DSMBA. That's my name, and this is your dream. Okay. So, my dear members of 100% Tyler's Club, कुर्सी की पेटी बांध के रखो अपनी अब, ठीक है। चलो आज के लिए हमारा यहां तक का, मिलते हैं जल्दी। बाय स्पर्श, बाय आशुतोष, बाय एवरीवन, सी यू गाइस, बाय बाय।